Okay, and this is a simple example. uh, and you remember these slides that we have, I mean, been talking about this example since beginning of the presentation or beginning of the slides. So okay, so maybe just go through your previous lecture and these presentation, and you will realize that we have this example where this is name and this is height, right? So these numbers just characterized height and names of the person. So so these names are domain, and these heights are simply range. So function is like if so okay, let's say this is function. You give input to this function as a name. For example, you give name Joe, it will give you the height of Joe. Or if you give the name Kiki, the function will give output the height of the Kiki. Okay, so this is f function, and if I will write it mathematically, so this is not a good idea, and y is equal to f of x. So this is name, this is height. Is it clear? The domain and the range of the function. Now we have another. Sidra Khan is okay. Why did she left? Now let me ask you a question. If you give input, let's say my name to this function, what will happen? So it will be on the x-axis. Well, it will be on the x-axis, but if you give my name, let's say Hanan, or another name, the Saud, for example, you, So so it will be domain. function क्या करेगा? ये functions में push. रिएक्शन क्या होगा फंक्शन का? Any wild guess? सर आपकी हाइट आएगी. Okay, good. So आप जो भी नाम देंगे उसकी हाइट आ जाएगी, unless it is defined in the domain or in the set. ठीक है, अगर आप उसमें डिफाइंड नहीं है फंक्शन, ठीक है ना, इस इन सेट्स पर, इन सेट्स में मेरा नाम नहीं है, या सऊद नहीं है, या सलमान नहीं है, तो उनकी रेंज में हाइट भी नहीं होगी ऑफ कोर्स. ठीक है, सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाम नहीं है यहाँ पे, तो फंक्शन विल रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई दैट नेम. ठीक है, अगर आप उसको मेरा नाम फॉर एग्जांपल इनपुट दें हनान, एंड दैट इज नॉट इन द सेट ऑफ डोमेन सेट में नहीं है हनान, तो फंक्शन विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट नेम. इट विल नॉट थिंक ऑफ दैट हनान एज अ प्रॉपर इनपुट. ठीक है, वो कहेगा फंक्शन विल बिकम एम्प्टी ना. वेल, सो एम्प्टी की बात तो तब आएगी जब वो उसको रिकॉग्नाइज करे. ठीक है, उसको ये मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा. एंड लेट मी एड समथिंग हियर, एंड दैट इज ओके. मैं एक हाइपोथेटिकल अभी सिचुएशन बनाता हूँ. डोमेन थोड़ी सी डिफरेंट डोमेन है. ठीक है, ये जो है, दिस इज माइक, दिस इज रोज, this is Kiki complete, this is Jim, and this is Hanan, and this is S. ठीक है, now we have 6, 5.755 and 6.5. अब क्या होगा कि अब ये,
ठीक है। अब अगर आप इसको इनपुट देंगे एच हनान और एस सऊद, सो इनमें से कोई ना कोई हाइट का जो नंबर है विच इज करस्पॉन्डिंग टू एच और एस, वो आपको आउटपुट दे देगा। ओके, लेट मी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मैं यहाँ इसको रेड पेन के साथ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। सो दिस इज जे, ये जिम है, ठीक है। एंड देन वी हैव एम, आर, के, जिम, H and S. All right, so and this is, let's say, 6, 5.75. R is a 6.5. This is 5. This is 5. This is 6.5. There is no value assigned to H. ठीक है, जो आप अगर if you go back to the slides जहाँ पर ये आपको values given थी टेबल में, and this one, okay, so जो 6 माइक this and this, अब आपने इसी तरह टेबल में values बनाई, you have, I mean, defined values and you are given these values. The height of Joe is 6, height of Mike is 5.75, height of Rose is 6.5, height of Kiki is 5, height of Jim is 5 again, same. Height of H Hanan is 6.5, okay, the same as Rose, and height of S Saud is not defined. Okay, we haven't assigned any height to S. So now based upon this data, please, yeah. सर ये रोज एंड किकी की सेम हाइट है? जी हाँ। ये 5.75 and 5 This is 5.7, this is 6, this is 6.5, this is 5, this is 5, this is 6.5. ठीक है। So for this data set are these defined values. जब आप फंक्शन में s इनपुट देंगे, सऊद एज इनपुट देंगे, तो फंक्शन उसके लिए आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अल्दो फंक्शन विल रिकॉग्नाइज दैट s इज डोमेन, ये मेरे डोमेन में है, बट वेल देयर इज नो, आई मीन, आउटपुट, ठीक है, ऐसे ही है। Yes, sir. Okay, interesting. Now I was you can think about as a test. तो कोई फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल कर सकता है? दिस इज नॉट करेक्ट बाय द वे, जस्ट अ हिंट जो मैंने अभी कहा है। You cannot leave in the end of the class. Sir, a function is that which has one input and which has one or more input, but it has only one output. So input can be one or two, but output can only be one. Okay. Sir, a function is a relationship between two variables. All right. So this is candid. A function is a relation between two variables. So this is variable name. Name is a variable, right? You change, keep changing the name. Joe, Mike, Rose. So variable changes, right? It varies. तो ये आपका एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है हाइट, ठीक है। और ये वाकई में इन दोनों का रिलेशन है। जो इज रिलेटेड टू 6, m is related to 5.75, but when we look at this one, s is not related to any value of the variable height. So ये आपकी डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। Is this really a function? No, sir. Okay, so this is basically not a function. And if you recall formal definition जो book में है, ठीक है, so let me go back and show you.
where is the definition? Okay, this one. A function is a relation or maybe this one. So basically they are same, but this is ये clear लिखी हुई है, मैं इसीलिए इसको कर. Function is a relation in which each element of set A. Now this is main thing कि each element of set A is related to exactly one element of set B. Another way of saying it is that there is one and only one output Y in set B. Now this function is from F okay, so this is basically F from set A to B. Okay, so this is domain, all values of X. This is range, all values of Y. There should be only one and only one value of output Y in this set B for each input X in set A. Now this each input emphasize that no element of set of domain should be, I mean, ignored or मतलब ऐसा ना हो कि x का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड रह जाए या उसका किसी के साथ रिलेशन ना हो रेंज के एलिमेंट या उसका कोई आउटपुट ना हो. तो ये यहाँ पर ये सिचुएशन है. S is the member of, I mean, domain set and it is not related to any, I mean, value. ठीक है, सही है. So this is not function unless we associate or we define or we, I mean, assign any value to S. Let's say 6, proper 6. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? I'm stopping this slides and reopening it. Okay. लेटर राइट चाहिए फिर. Okay, so close this, save, and let me open it again. Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, it's shown Yes, again. sir. So now we associate some height to this variable S. Let's say 6. Okay. Now this is a proper function. Every member of set names, yeah, domain is associated with some height, and height is a output or it is range. Okay. So this is now a proper function. पहली सिचुएशन में अगर s को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं था तो वो फंक्शन था ही नहीं. अगर आप उस फंक्शन में s देते तो वो उसको मतलब रिकॉग्नाइज, अगर उसमें है ही नहीं तो फॉर एग्जांपल अभी भी वी हैव अनदर स्टूडेंट इन द क्लास में भी इट इज मोहम्मद खुजैमा फॉर एग्जांपल, एंड इफ यू गिव इनपुट एज अ खुजैमा, फंक्शन विल नॉट रिकॉग्नाइज. एंड इन मैथमेटिक्स we have to say that Khuzema is not in the domain of this function. ठीक है, सही है. Okay, sir. And Okay, sir. yes, please, questions.
Any questions? No, sir. Okay. Then so this was very simple example where function was defined in terms of this one. ठीक है, सही है, टेबुलर डेटा. लेकिन फंक्शंस के जनरल फॉर्म भी मतलब होते हैं, उसमें भी गिवन हो सकता है ना कोई भी फंक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपका set. Now this is height. It is function of x where x is your age in years and f of x is defined as, ये मैं अपनी तरफ से define कर रहा हूँ and it will be a bit realistic and you will see के या तो ये इस तरह data में given हो function या general function कैसे हो सकते हैं. आप लोग वैसे भी general functions आप लोग use करते हैं, जैसे cosine of x use करते हैं ना, आपने use किए हैं उनको, ठीक है, उनको evaluate भी किया है, उनको मतलब add subtract भी किया है, या x square plus 2 ऐसे functions use किए हैं आपने. Yes, sir. These Yes, sir. So Yes, I'm just trying to look at these functions, or I'm going to these functions with a different perspective. Okay, they just represent, I mean, some phenomena, some realistic input values, and then output will be some realistic, let's say, or physical phenomena. So height will be output, x your age in years, and function will be defined in okay, so 3x plus 1.75 and wait, okay, yeah, this is linear function, simple. So up so this defines, I mean, the height. This function defines the height. X is a input, so it's age in years. For example, if someone is 20 years old, so his height or her height will be 3 times 20 plus 1.5. So the result is in inches, for example. So it will be 62 inches approximate, 61.75 inches. So it's sir, we have to input the value in x, na? Like 3 Yeah. or per value per plus 1.75. Exactly, yeah. Okay. Thank you, sir. So x is age in exact years, right? 20, 21, 22, 17, 18, 19, and 30, 34, 50. ठीक है, फिर उसमें वो ऐड करेंगे. वेल ठीक है, ये रियलिस्टिक जरूरी नहीं है कि हो, बट या. So this is how, I mean, all functions are representing some physical phenomena. ठीक है. Okay, so there is another example. Let's say, Sir? yes. सर अगर मैं f of x की एक इक्वेशन गिवन हो और मैं डोमेन निकालने का बोले विदाउट एनी रेंज, तो किससे निकालेंगे? उसी की तरफ आ रहा हूँ मैं, ठीक है. तो ये जो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन किया था कि डोमेन मतलब होना जरूरी है, उस पर डिफाइन होना जरूरी है. तो या I'm coming to that point, ठीक है. So there is another example. Cell is a function of number of TV advertisements. ठीक है, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स जितनी होंगी और उस हिसाब से आपकी सेल जो है किसी भी एक खास उसकी मतलब चीज की वो ऊपर नीचे होती रहेगी. ठीक है. So you can think about so many examples of functions. ठीक है. Okay, so yeah, this slide is just I mean illustrative examples. अगर
फंक्शन इन ऑर्डर पेयर्स में गिवन हो, ये भी अभी फंक्शन ही है, ठीक है ना, या रिलेशन। तो 3 6 2 8 5 3, 3 2 and 5 are domain and 6 8 and 3 are range y coordinates। मतलब ये सिंपल, इतना सिंपल फंक्शन है कि सिर्फ 3 पॉइंट्स पर ही डिफाइंड है, या ये इतना सिंपल फंक्शन है कि 5 पॉइंट्स पर डिफाइंड है, या 5 डिफरेंट नेम्स पर डिफाइंड है, और उसके पॉसिबल आउटपुट्स 4 हैं। आउटपुट्स का नंबर ऑफ जो है वो हमेशा डोमेन के नंबर से के इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कैच माय वर्ड्स के आपके अगर डोमेन में 5 लेट्स से एलिमेंट्स हैं, तो आपकी रेंज में 5 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, 5 कम हो सकते हैं। और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 हैं, तो सिमिलर आएंगे, एक रेंज में सिमिलर आएंगे। एग्जैक्टली। तो जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए कि 3 या 2 मतलब लोगों की हाइट सेम आएगी, ठीक है। और ये जो रेड में हमने डेटा लिखी है 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 आई मीन डिफरेंट नेम्स इन द डोमेन। हाइट स्टिल जो है वो 4 है, 4 डिफरेंट हाइट्स है, ठीक है। तो दो टाइम्स जो है ना 3 लोगों की हाइट सेम होगी, ठीक है। इवन रेंज में आपका एक नंबर भी आ सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट भी आ सकता है, तो सर सबकी हाइट सेम होगी ना, मतलब एग्जैक्टली। तो उस वक्त आप ऐसा ही, मतलब ऐसे ही लोग ले रहे हैं जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, एंड you use that function very frequently, that function is a constant function, ठीक है। यस सर, ओके। उसमें आप जो भी इनपुट देते हैं, whatever I mean the value of x, the name, or in general the value of x as an input you give, your output will be constant, fixed, same, ठीक है। ओके, दो चीजें फंक्शन में मतलब हमने चेक करनी है कि रेंज में आपके पास रेंज में आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, पर वो एसोसिएटेड उनके साथ नहीं होंगे, ठीक है। और डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड ना हो, इग्नोर्ड ना हो, हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिलेट हो, ठीक है। अब जनरलाइज्ड फंक्शंस की तरफ थोड़ा, कि दिस इज अ जनरलाइज्ड फंक्शन। I think there is some issue in my tablet, or yeah. Okay, so this is a generalized function. F of x is equal to square root of x square. Alternatively, you can write this as this one. Now, x is a सर 4 सर एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है ना, मतलब no, रूट एक्स square स्क्वायर। root. Y is equal to x power 1 by 2. अच्छा, सही। All right, so this is input, are independent variable, and this is output. First question is this a function? यस सर, इट्स अ फंक्शन। यस सर, इट Yes, Okay. sir. And what is domain and range? So next question. सर डोमेन कैन बी स्क्वायर 2 4 6। Now this is interesting, right? So सर यहाँ पर डोमेन जो है 0 से लेके 0 और 0 से बड़ी होगी। okay, so you do not consider negative Sir, numbers as a All real numbers. domain All won't real be numbers, sir. negative. All real All numbers. real numbers. All real numbers. negative नेगेटिव numbers में आउटपुट नहीं आएगा। 7 digits. नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। सर बट नेगेटिव में आउटपुट कैसे आएगा? कोई इसके आइडिया को अपोज करता है? कि नेगेटिव नंबर्स भी डोमेन में आ सकते हैं या नहीं? सर नेगेटिव नंबर डोमेन में नहीं आ सकते, लेकिन नेगेटिव नंबर रेंज में आ सकते हैं।
ओके, तो all are you agreed that कि इसकी जो डोमेन होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे? जी सर। कोई अभी भी सोचता है कि इसके फंक्शन के जो डोमेन है उसमें नेगेटिव रियल नंबर्स भी आ सकते हैं? Okay, so first answer is yes, is this function and Yes, sir. domain. यस सर, आ सकते हैं नेगेटिव। ओके, नेगेटिव भी आ सकते हैं। ओके, देन अगर फॉर एग्जांपल हम -1 इनपुट दें तो आउटपुट क्या आएगा? सर कैन यू रिपीट दिस? आप नेगेटिव इनपुट दे सकते हैं, ठीक है? सर एरर आएगा। अगर -1 एक खास स्पेसिफिक इनपुट देते हैं, -1 x = -1, तो आपका y क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? इमेजिनरी नंबर आते हैं ना? ओके, सो स्क्वायर रूट -1 आयोटा, ठीक है? यस सर। सर तो इसके अंदर डोमेन क्या हुआ? सॉरी सर तो डोमेन क्या हुआ? -1। इसका ये डोमेन को हम कह रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है ना? इसीलिए अच्छा। -1 यूज किया तो आयोटा आ गया। अब सही है। अब जो कह रहे थे कि माइनस या नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, उनका क्या ख्याल है? सर ये आयोटा लगा दिया आपने, अब आ सकते हैं। सर हम लोग आयोटा के बगैर की बात कर रहे थे ना। अब सर, आयोटा सर, तो अलग केस सर, हो जाता है, वो तो सर, रियल नंबर हो जाते हैं, इमेजिनरी नंबर। सर जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो नहीं आएगी ना? ओके, सो द क्वेश्चन इज प्लीज फिनिश, कंप्लीट व्हाट आर यू सेइंग? या सर ये फंक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वाले। सर नेगेटिव नंबर आ सकता है डोमेन में? दोनों जो नैरेटिव्स हैं दोनों सही हैं, ठीक है? अगर वो सिर्फ मतलब उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो। पहला नैरेटिव क्या है कि नेगेटिव नंबर्स कैन बी डोमेन। ओके, नेगेटिव नंबर्स कैन बी पार्ट ऑफ डोमेन अगर हम रेंज को डिफाइन नहीं करते या उसको एक्सक्लूसिव ये नहीं कहते कि उसमें आयोटा या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स नहीं होंगे। जैसे किसने लड़की ने कहा, आई डोंट नो किसने कहा ना, ठीक है? तो आप आयोटा कंसीडर नहीं करते वहां पे, तो फिर आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। अगर कहते हैं कि आयोटा बायोटा मुझे रेंज से कुछ भी नहीं है, उसमें पूरी दुनिया आ जाए यूनिवर्स और रेंज में, तो आपके नेगेटिव नंबर्स भी डोमेन का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट इज कि नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते उस वक्त जब आप अपनी रेंज को, जो रेंज ऑफ फंक्शन है, उसको सिर्फ रियल नंबर्स तक कन्फाइन करते हैं, लिमिट करते हैं। कहते हैं कि रेंज आपकी सिर्फ रियल नंबर्स हो, इमेजिनरी नंबर्स ना हो, और रियल नंबर्स के अलावा भी उसमें कोई चीज ना हो, ठीक है? When you jump to the next semesters, तो आप ऐसे फंक्शंस भी पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ नंबर्स नहीं, रियल नंबर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इवन नहीं, आप उसमें और डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स एज इनपुट दे रहे होंगे और उनके आउटपुट्स कुछ और आउटपुट डिफरेंट किस्म के आ रहे होंगे, ठीक है? So function is very generalized concept. You just give input, something input, and you get output. So calculus 1 में we are mostly limited to real line. तो हमारा जो डोमेन होगा that will be are within real line, और हमारी जो रेंज होगी वो भी हम by default we shall consider real line as a range of our all functions, जो भी हम functions calculus में discuss करेंगे, ठीक है? So there is no possibility of talking about imaginary numbers or complex numbers either in a
डोमेन, सेट ऑफ डोमेन आर इन सेट ऑफ रेंज। जब ये आपने लिमिट कर दिया कि यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव सॉरी इमेजिनरी नंबर्स इन रेंज, तो उस वक्त यू आर इन अ पोजीशन के टू से दैट नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है सर कर्व के फंक्शन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले? ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल फर्स्ट पढ़ेंगे। सेमेस्टर। लुक नाउ दिस इज फंक्शन, सही है ना, उसमें हम सिर्फ इनपुट और जो आउटपुट है ना वो रियल। नाउ ये भी तो फंक्शन है, लेकिन हम कहते हैं कि हम इमेजिनरी नंबर्स नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते, रेंज में इमेजिनरी नंबर्स नहीं आ सकते। ओके किस वक्त नहीं आएंगे? जब तक आप इसमें पॉजिटिव नंबर्स इनपुट देते रहेंगे आपका इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, आप इसमें जब नेगेटिव नंबर्स देंगे यू एंड अप विद कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो वो आपको सिचुएशन नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ आउटपुट नहीं चाहिए। तो आपकी जो डोमेन होगी ये आपकी होगी आर पॉजिटिव, मतलब 0 एंड ऑनवर्ड्स, या अगर इसको इंटरवल में आप लिखते हैं तो 0 to infinity। ठीक है, इसकी रेंज में आप डोमेन में आप नेगेटिव नंबर्स कंसीडर नहीं करेंगे, और इसकी जो रेंज होगी ये पूरी कंप्लीट रियल लाइन होगी, नेगेटिव नंबर्स इसमें भी नहीं आएंगे। सो ये 0 to infinity पॉजिटिव सिर्फ होगा। ठीक है सर हम इसकी आयोटा वाली इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स दोनों की एप्लीकेशन सीखेंगे। दोनों की एप्लीकेशन सीखेंगे। नो, कैलकुलस 1 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज अ डोमेन ऑफ फंक्शन या रेंज ऑफ फंक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ रियल नंबर्स करेंगे। ठीक है, ओके सर। okay, so this is nice visualization of this function, and this is x and this is y. Now this is x and this is y, या आप इसको f of x भी कह सकते हैं। जब x की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं इस तरफ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ बन रहा है, एंड दिस एरो गोज ऑन टिल x इंफिनिटी। ठीक है, x इंफिनिटी। तो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, दिस कंप्लीट रियल लाइन। ठीक है, नो नेगेटिव रियल नंबर इज पार्ट ऑफ द दिस फंक्शन, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सही है। मैं जस्ट एक एनालॉगस एग्जांपल अगेन दे रहा हूँ कि अभी हमारे क्लास में सुल्तान आए हैं। ठीक है, तो सुल्तान इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज इट्स नॉट मेंशन्ड हियर। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक्सक्लूसिव फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है इन एक्सप्रेशन फॉर्म, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म। तो वेल यहाँ पर माइनस जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, दिस इज विजुअलाइजेशन एंड इट्स रेंज इज आल्सो, ये यहाँ पर डोमेन थी, एंड नाउ दिस इज रेंज, इट इज आल्सो फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, मतलब ये सारी पॉजिटिव। ठीक है, so this was the question, right? Now well, ठीक है, क्वेश्चन था कि how will you find domain of given function, functions given in algebraic expression। ठीक है, किसी ने ये पूछा था इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसकी हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। अब नाउ ये हमने कैसे फाइंड की
कैन यू आई मीन राइट स्टेप्स के इसकी इस फंक्शन की हमने ये डोमेन फाइंड की. आई वुड लाइक जी जी स्टेप्स बताने. हाँ मतलब आप हमने ये की ना, इस डोमेन फाइंड की है, ठीक है. तो इस डोमेन तक कैसे पहुंचे, कैसे फाइंड हुई, वो स्टेप्स क्या थे, ताकि हम उसको जनरलाइज कर सकें. अगर हमें और फंक्शंस भी हों तो उसकी भी हम डोमेन फाइंड कर सकें. सर पहले 0 इनपुट करेंगे तो आउटपुट वो रियल नंबर्स में आएगा. ओके टू गुड. सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स इनपुट करेंगे तो सर ऐसे ही आंसर्स आते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि रेंज इन्फिनिटी तक है, वो डोमेन इन्फिनिटी तक. ठीक है. एंड okay good, so you just explained the half part. Let me complete it. और वो ऐसे हमने किया कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है ना डोमेन की, ठीक है, वो आपकी हो सकती है -∞ to ∞. आप 0 पे चेक करेंगे या 0 को चेक करेंगे वेदर इट कैन बी पार्ट ऑफ डोमेन और नॉट. सो 0 को x की जगह पर इस फंक्शन में यूज करके देखेंगे. यू विल नॉट कंप्यूट लिटरली बट जस्ट आई मीन गेट इंट्यूटिव फीलिंग. व्हेन यू प्लग इन x = 0 व्हाट विल बी द आउटपुट. आउटपुट क्या होगा? 0. ठीक है, इट इज अ रियल नंबर. तो आपकी जो पॉसिबल रेंज है दैट इज आल्सो that should be, I mean, real numbers are subset of real numbers. Now this is subset of real numbers. ठीक है, तो 0 आपका डोमेन में आ जाता है. ठीक है, इंक्लूड इट, बल्कि ऐसे इंक्लूड में क्यों कर रहा हूँ. तो 0 आपका आ गया एंड देन चेक एट 1 2 3. सो अगर 1 पुट करते हैं द आंसर इज 1, it is in the range. So 1 भी है, 2 भी है, ठीक है ना, 3 भी है, और all of sudden I check 300, तो 300 भी डोमेन में है. So I just, I mean, generalize that from 0 to infinity, this is complete interval is part of domain. Now I will, I mean, check on the left side of this 0. तो मैंने -1 दिया, मैंने चेक किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, this cannot be part of domain. -2 लिया, ओके, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं विदाउट इवन कंप्यूटिंग. आई मीन जस्ट रिप्लेस x विथ -2. आपकी इंट्यूटिव फीलिंग आपको बता रही है ओके दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो दीज टू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेन. तो पूरे नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते. सो 0 से जो लेफ्ट नंबर्स हैं दैट दोज आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेन. सो दिस इज हाउ यू चेक, मतलब by guessing 0 and then few numbers on the right and few numbers on the the left. And there is another trick of finding, I mean, domain of the function के आप ऐसे उसमें इनपुट्स ना दें, ऐसे नंबर्स को डोमेन का ऐसा नहीं बनाएं जिस पर फंक्शन डिफाइंड ना हो, जिस पर फंक्शन ब्लास्ट हो जाए, कोई भी आउटपुट ना दे पाए वो. जैसे ये फंक्शन था, इसको आप सुल्तान एज ए इनपुट देते हैं, फंक्शन इज लॉस्ट बिकॉज इट डज नॉट नो कि व्हाट इज द हाइट ऑफ सुल्तान और मुझे उसका क्या रिएक्ट करना है, रेस्पॉन्स या आउटपुट क्या देना है. ठीक है, उसका एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि अगर इफ यू हैव दिस फंक्शन f of x is equal to 1 of x. ठीक है, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान. Yes, sir. Okay.
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, इसका डोमेन क्या होगा फंक्शन का? अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल समद, आसिफ, आसिफ, आदिल आसिफ। Yes, sir. अक्सा, अक्सा सज्जाद, Yes, sir. Yes, असदुल्ला खान, Yes, sir. आयशा फिदा, sir. इरम जुल्फकार, Yes, sir. फरियाल मलिक। Yes. सर आप आंसर पूछ रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूँ कौन जाग रहे हैं। अच्छा, फातिमा दुआ, फातिमा दुआ, Yes, sir. and then Yes, sir. Marine Faisal, yes, sir. नमरा खालिद, नमरा खालिद, रयान सिद्दीकी, Yes, sir. and then okay, yeah, तिरछना में भी, तिरछना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे या नहीं? ओके, सो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, आप पूछ रही हैं कि 0 इसकी डोमेन होगी या नहीं, ठीक है? हाँ। तो कोई डोमेन पहले बता दे कि होगी क्या। सर नेगेटिव बस 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स, Sir, all real numbers except 0. Negative infinity to infinity. नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें 0 भी आ जाता है। Except 0. सर एक्सेप्ट इसमें से -0 कर दें। नाउ 0 इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, तो दिस काइंड ऑफ आंसर द क्वेरी और द क्वेश्चन कि हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? सही है? Okay. और इज इट डजंट, आई मीन अगर अभी भी आंसर नहीं मिला उसका, सो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। कैलकुलस में व्हेन आई मीन यू आर लुकिंग फॉर सम फंक्शन कि उसकी डोमेन क्या होगी या उसकी रेंज क्या होगी, फर्स्ट थिंग यू नीड टू आई मीन कीप इन योर माइंड इन द के यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द रियल नंबर्स, ठीक है? आप मैक्सिमम रियल नंबर्स सिर्फ ही कर सकते हैं, तो डोमेन भी रियल नंबर्स होगी या उसका सबसेट होगा, रेंज भी रियल नंबर और उसका सबसेट होगा, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आई मीन look at the function, give it a very critical view, ठीक है? सपोज आप किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं और उसका मेन्यू देखते हैं तो उसको एक जबरदस्त क्रिटिकल व्यू देते हैं, एंड आपके जहन में सिर्फ अपना पॉकेट भी होता है ना, पर्स भी होते हैं कि व्हाट वी कैन अकोमोडेट, एंड तो टेस्ट भी आप सिमुलेट कर रहे होते हैं, उस वक्त की नीड भी टमी की आप कर रहे होते हैं, और ऑल दीज थिंग्स, फिर आप कंक्लूड करते हैं। तो फंक्शन को एक क्रिटिकल आप लुक देंगे कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। जैसे ये बहुत ही इजी था कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए फंक्शन का, सर आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हो
इमरान आप म्यूट कर दें अपने। ठीक है, अभी आवाज सही है बच्चे? यस सर, सही है, सही है। ओके, सो आप सबसे पहले फंक्शंस में देखेंगे कि उसमें कोई ऐसी वैल्यू x की जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो, डिफाइन ना होता हो। तो मोस्टली जो फ्रैक्शनल फंक्शंस होते हैं, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए, ठीक है, या डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में जीरो ना आ जाए, तो वो फंक्शन भी आपके अनडिफाइंड होते हैं। दूसरी आप ये पॉइंट देखते हैं कि उसका आउटपुट जो है विद इन रियल नंबर्स ही रहे। अगर x की कोई हम वैल्यू देते हैं तो उसका आउटपुट रियल नंबर ही रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर ना हो। तो ये दोनों चीजें चेक करने के बाद आप r को बेसिकली इन सेक्शंस या इन पार्टीशंस देख सकते हैं कि जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स पे। यस, न्यूमरेटर पे जीरो आता है तो वो ओरिजिन पे हो जाएगा ना? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे जीरो एट द सेम टाइम, ठीक है। न्यूमिनेटर में नॉन जीरो हो, डिनोमिनेटर में जीरो हो, दैट इज आल्सो, आई मीन, गिव अस अ हिंट दैट वैल्यू ऑफ x विल नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेन। और अगर दोनों में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम टाइम पे जीरो आ जाते तब भी। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 2। नाउ x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर न्यूमिनेटर भी जीरो है, डिनोमिनेटर भी जीरो है, x माइनस 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पर क्या आ जाता है आपका? जीरो बाय जीरो ना, अनलेस के, सॉरी, हाँ टू हो जाएगा सर, टू सही है। सही, जीरो बाय जीरो हो जाएगा, अनलेस के आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते या व्हाटसएवर। अगर इसी उसमें पुट करेंगे तो यू विल एंड अप विद 0,0। सर आई टू एक्स अपॉन 2 होगा तो ऊपर अगर जीरो आता है तो वो ओरिजिन होगा ना? नहीं, अब ऊपर जीरो आएगा और नीचे भी अगर जीरो है डिनोमिनेटर में, देन नीचे अगर खाली 2 है, जैसे कि x अपॉन 2 इक्वेशन है फंक्शन की, उसमें अगर ऊपर जीरो आता है तो वो ओरिजिन हो जाएगा ना? अगर सिर्फ न्यूमिनेटर में जीरो आता है और नीचे नॉन जीरो आता है तो वो फंक्शन डिफाइंड होगा, वो आपका डोमेन का हिस्सा होगा, x की वैल्यू जो होगी वो डोमेन का हिस्सा होगी, ठीक है। तो वो ओरिजिन पर ही होगा, x उसका ओरिजिन, सॉरी y उसका ओरिजिन होगा, ठीक है। ठीक है सर फिर से एक्सप्लेन करेंगे सर एकदम? तो ये फ्रैक्शन वाला नहीं समझ आया कि वो न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होगी, फिर किस तरह होगा, ये एक्सप्लेन कर दो। ये जो जिसने पूछा है ना, उसने थोड़ा सा मैस, he made a mess, so let me take particular example and x minus 2 divide by x plus 7, ठीक है। Now this is a function, when you give x is equal to 2, what is the output, what is the range, value of range at x is equal to 0 divided by 9, and this is ultimately 0, ठीक है। ठीक है। Now this means the x intercept of this function, या जो x एक्सिस पर जो वो क्रॉस करेगा या टच करेगा, ठीक है, वो x is equal to 2 पर करेगा। Now this is x, this is y, so you have seen this is a function, ठीक है ना, ये फंक्शन है। तो ये x is equal to 0 पर 0 को टच कर रहा है, बट इन दिस केस इफ दिस इज 1, दिस इज 2, सो ये फंक्शन कुछ भी हो, कहाँ पर भी हो, बट व्हेन इट विल क्रॉस दिस x एक्सिस, इट विल क्रॉस एट दिस पॉइंट, आइदर दिस, या यहाँ से यूं जा रहा होगा या यूं जा रहा होगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ भी, लेकिन इस पॉइंट को वो जरूर क्रॉस या टच कर रहा होगा। उसका x इंटरसेप्ट जो है वो x is equal to 2 पर है। This is what it says. सर 2 से ही क्रॉस करेगा ना? Exactly 2 पर ही क्रॉस करेगा, because when x is equal to 2, y is equal to 0, and y is equal to 0 is, yeah.
सर इसकी जो डोमेन होगी ये वाले फंक्शन -2 upon x plus 7 के x is not equals to -7. Exactly. So now domain of this function will be r minus 7. Sorry, -7. ठीक है, सिर्फ आप -7 निकाल के बाकी complete real line is part of domain of this function. ठीक है, now clear? Is it clear now? Yes, sir. Okay. And what was written on this presentation? It was giving us another example जो पूरा इसमें cover हो गया discussion में, and that example is area of the circle you know from your school or college geometry. So A is equal to pi r square. A is pi r square, and this is function of r because pi is a fixed value, it's a constant r parameter. This is variable r. Okay, so if you increase the radius, area will be increased. It's a quadratic function, and yeah. So let's try to graph this in the next slide and see how it looks. So when r is equal to 0, a is 0. When r is 0, a is 0. So x is equal to 0 is, it's not x intercept, but it is the point where it touches x axis. ठीक है, जहां पर मतलब y 0 है. So when r is 0, we have area is equal to 0, and yeah, ये r x ही है और ये आपकी just y है. ठीक है, और if r is increased 1 2 3, area is also increased, and if r is negatively increased, even in that case area is increased. So this function is always positive. Okay, now simply tell me what is domain of this function. सर अभी तो ये फंक्शन नहीं है. फंक्शन नहीं है? सर -10 to 10 r, minus infinity to infinity. Okay, we couldn't graph, so इसको मैं यहाँ अगर एरो लगा दूं, इसका मतलब ये है कि it is extended till from minus infinity to positive infinity. Yes, sir. तो अभी ये फंक्शन तो है, इसका डोमेन, फंक्शन की डोमेन क्या होगी? What will be domain of this function? Sir, negative infinity to positive infinity. Okay, and what will be the range of this function? Greater than 0. 0 to infinity. All positive real numbers. So the greater than or equal to 0. Okay, minus 0 to infinity. Now my question was, what is the domain of this function? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है ना, what is domain of this? And listen carefully, if you are not concerned that आपका इंटरेस्ट नहीं है कि what a is, बस you are just looking at this one, y is equal to f of x, and this is defined as pi x square. You do not want to know, or you have no interest at what x is, what y is. तो आप उसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी उसका डोमेन होगा और रेंज होगा 0 to infinity. ठीक है, ये आपका डोमेन है and range is 0 to infinity. If you think about
A is the area of the radius and R area of the circle and R is the radius of the circle, then आपके पास एक मतलब let's say कि real problem है and radius cannot be negative. ठीक है ना, radius is distance from 0 to steps up 1 2 1 2 और so on. ठीक है, so इसकी जो रेंज हो सॉरी जो डोमेन होगी उसमें आपकी ये नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं आएंगे. सो इफ आई मीन आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी जो अगर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, इफ दिस इज एरिया ऑफ, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक समवन. सो एरिया ऑफ सर्कल, दिस विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव. ओके, यहाँ तक अभी हमने 0 भी लिखा है, but from geometry, please switch off mics. From geometry, you also know that the circle can never have a area as 0. अगर 0 होगी तो it means that will be a point. Geometric object जो है वो point. Is it true? Yes, sir. Okay. So we will exclude even 0. Okay. So this open interval from 0 to infinity positive where 0 is not included. So this is domain of area of the circle function. Okay, exclusively mentioned as area of the circle function because it relates to certain physical या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. सब सर ठीक है, समझ गए सर? जी सर, ये कैन अ सर्कल हैव अ एरिया इक्वल टू 0, ये तो गलत है ना, मतलब क्योंकि रेडियस 0 नहीं होता ना. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. उसी वजह से 0 जो है वो डोमेन का हिस्सा नहीं है. अगर 0 डोमेन का हिस्सा हो जाता है, सही है ना, तो it means कि we are admitting that area can be 0. तो हम उसको मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे. R is cannot be equal to 0 in case we are considering area as a function and R as an input variable, radius as an input variable. ठीक है सर? सर कि दूसरा वे है कि हम लोग डोमेन फाइंड आउट कर सकें rather than putting values from 0 to infinity. तो दूसरा वे है कि अगर आप फंक्शन गिवन हो कोई 3x plus 4. नो मतलब आप 0, ठीक है 0 एंड पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड. 0 पर चेक करेंगे, उसके पॉजिटिव साइड्स 1 and 2 एंड देन इंट्यूटिव फीलिंग, मैथमेटिकल फीलिंग विल ड्राइव यू टू से कि वो पूरी पॉजिटिव पर होगा या नहीं. एंड अगेन नेगेटिव साइड, नेगेटिव रियल नंबर्स 1 या 2 ट्राई करेंगे. अगेन मैथमेटिकल आई मीन सेंस विल पुश यू टू कंक्लूड दैट कि वो पूरा नेगेटिव उसका डोमेन बनेगा या नहीं. ठीक है, तो दिस इज द ओनली वे ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस. एंड लुक, ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डोमेन और रेंज का हिस्सा नहीं मतलब लेना चाहते. You are in calculus. When you grow up in mathematics, you take complex numbers as a part of domain and as a part of range. Even more than that, you take a lot of different objects as a part of domain. For example, in certain higher classes or in some part of mathematics, people define function on the set of functions. ठीक है, एक सेट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उस पर फंक्शन बनता है और उसका आउटपुट या उसकी रेंज पता चलती है जो उस फंक्शन की लेट से क्वालिटी या उसकी बाउंडेडनेस या चीजें बताती है. ठीक है, सो जब तक आप रियल लाइंस में हैं तो जनरलाइज के लिए डोमेन मतलब आप इसी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते. दिस मेथड is
only I mean limited to when you have real valued functions. उनकी डोमेन और रेंज आपकी रियल वैल्यूज तक कन्फाइंड या लिमिटेड है, ठीक है ना। बाकी अगर उनसे बाहर जाते हैं तो ये मेथड नहीं कि सिर्फ जीरो पे चेक करें पॉजिटिव पे और नेगेटिव नहीं, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड व्हाट यू वर ट्राइंग टू नो। इफ नो आई कैन रिपीट इट। यस सर। ओके गुड। समझ आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जो A2 मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाया था उसमें वो कंफ्यूज। मतलब अगर आप के पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर इसी तरीके से आप डोमेन और रेंज फाइंड नहीं करेंगे कि पहले जीरो पे फिर पॉजिटिव रियल फिर नेगेटिव, क्योंकि उसमें तो आप इनपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे सकते हैं ना, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। या चलो मोहम्मद उमर क्लास से रिमूव हो गए तो मुझे बोल रहे हैं कि सर को बोलें ऐड कर ले वापस। उनको कहीं ऐड में उनको कहीं लिंक से ज्वाइन कर लें। नहीं वो कोई लिंक से वापस ज्वाइन नहीं हो पा रहे, शायद आपने उनको रिमूव किया था ना, माइक उनका डिस्टर्ब कर रहा था। अब क्या करें, अब वो सो जो रहे हैं तो हम कैसे उसको। नहीं वो कह रहे नेट इशू कर रहा था, वो बोल रहे हैं। I don't know how to invite individually the link. Okay, add people. What is his email? Sir, let me check. What is name? Omar? Omar Lari, Mohammed Omar Lari. Ask him to check email. Okay. Now, this is domain, this is range. ठीक है, हम पहले ही मतलब इस पर सेटल हो चुके हैं कि if this function is representing area of circle, it is not merely or I mean not simply let's say abstract function. वो कोई physical phenomena represent कर रहा है तो हमें domain और range को उसी तरीके से देखना है। Now this let's say aspect of viewing functions is causing too much problems between mathematicians, pure mathematicians or core mathematicians, and the other guys who are using mathematics. ठीक है, let's call हम इसमें नेगेटिव क्यों नहीं यूज कर सकते रेडियस? Okay, so यही चीज अभी we are explaining discussing the same thing कि जो नॉन मैथमेटिशियंस हैं वो ऐसे ही कहते हैं कि माइनस मतलब well, being in a mathematics, you can use minus as a domain, -1, -2 or -3, ठीक है। But since you say that this function is giving output the area of circle, ठीक है, तो आप सर्किल का जो एरिया आउटपुट आ रहा है और उसमें इनपुट दे रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्किल, so how can you I mean use negative radius because there is no concept of negative radius, ठीक है। तो क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। एरिया भले पॉजिटिव हो बट रेडियस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। मतलब अब यूनिट रेडियस का सर्किल है तो उसका रेडियस आप कह सकती हैं कि -1 है? नो, कभी भी नहीं। रेडियस 1 है, उसके जो 380 सर्किल के नाउ दिस पॉइंट और इसके जो ये पूरा सर्किल बनेगा ना, इस तरफ भी 1 इस तरफ भी 1, तो ये वाला 1 पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव ऐसे नहीं है। इस रेडियस को भी आप 1 कहेंगे, इसको भी 1 इसको भी 1, जो पूरे 360 में रेडियसेस होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव 1 होंगे, ठीक है। कोई भी नेगेटिव रेडियस नहीं होगा बिकॉज रेडियस इज सिंपली डिस्टेंस from the origin of the circle to its outlying boundary. तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो और इसी पे जो है ना वो लड़ाई रहती है मैथमेटिशियंस और नॉन मैथमेटिशियंस की। नॉन मैथमेटिशियंस फंक्शंस को बिगाड़ के यूज करते हैं। अब ये उसका थोड़ा सा सख्त है उनके लिए कहना, बट दे यूज फंक्शन फॉर देयर मैक्सिमम बेनिफिट। तो वो डोमेन को कर्टेल कर देते हैं, पसंद की डोमेन लगा देते हैं। जैसे किसी को ये एरिया चाहिए होगा ना सर्किल का,
तो वो डोमेन में नेगेटिव नंबर्स नहीं ले रहा, बिकॉज ही और शी नोज दैट मैं नेगेटिव रेडियस नहीं मतलब ले सकता या ले सकती, क्योंकि रेडियस नेगेटिव होता ही नहीं है। लेकिन जो मैथमेटिशियन होगा, जैसे आपने पूछा है कि नेगेटिव पुट करें, फंक्शन तो बन रहा है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ रेंज, तो ये तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो नेगेटिव हम क्यों नहीं इंक्लूड करें, नेगेटिव भी इंक्लूड करेंगे। उनको नहीं चाहिए प्रॉब्लम में नेगेटिव डोमेन, वो छोटी रखना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड और फिजिक्स बेस्ड उनकी। तो ये लड़ाई इन बिटवीन मैथ्स एंड नॉन मैथ्स के चलती रहेगी, ठीक है, सही है। ओके सर। ओके, लेट मी ऐड अनदर एग्जांपल इसमें। वो ये कि अभी हम डिस्कस करेंगे उसको कॉन्सेप्ट को, फॉर्मली डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, बट आई एम वेरी श्योर मे बी नॉट ऑल ऑफ यू, तो 75 और 80% स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी अवेयर होंगे। एंड नाउ द फिजिस्ट गाइज, द फिजिस्ट इवन आई मीन द फिजिक्स, राइट, जो फिजिक्स करते हैं ना, या इवन कंप्यूटर वाले, तो या इकोनॉमिक्स वाले फॉर एग्जांपल, वो डिफरेंशिएशन को देखते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ग्रोथ। इकोनॉमिक्स वाले देखते हैं उसको ग्रोथ, और फिजिक्स वाले देखते हैं वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन जैसे बस वेलोसिटी ही है या एक्सीलरेशन है, क्योंकि वो डिस्टेंस को डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, और कोई चीज उनको नजर नहीं आती डेरिवेटिव में, कम ही नजर आती है। मैथमेटिशियंस को डेरिवेटिव में ये सारी चीजें नजर आती हैं, वेलोसिटी भी, एक्सीलरेशन भी, ग्रोथ भी। जैसे इकोनॉमिक्स वालों को सिर्फ ग्रोथ नजर आती है, और मैथमेटिशियंस को ग्रोथ के साथ डिक्रीज भी नजर आती है, ठीक है। फंक्शन हर वक्त इंक्रीजिंग नहीं होता, उसकी वैल्यू मतलब डिक्रीज भी हो रही होती है ना डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिक्स वालों को जो ना मतलब एक प्रॉपर पूरी पिक्चर नजर आती है, और वो अक्सर फिर एक कन्फ्रंटेशन वाला अब सीनेरियो बन जाता है। जो लोग डिफरेंशिएशन को यूज करना चाहते हैं मैथमेटिशियंस, उनको कहते हैं कि इसको प्रॉपर यूज करें, अपने मकसद के लिए मिस यूज ना करें, ठीक है। तो इस तरह की अक्सर सिचुएशंस, सो यू हैव टू डाइजेस्ट द बोथ आइडियाज, ठीक है। मैथमेटिशियंस mathematics should be for facilitation other sciences and engineering, ठीक, आप उसमें स्टेप बोन अपनी थ्योरीज में और उसमें डालें, ठीक है। Okay, so this is okay if we think about this as a, I mean, abstract function in mathematics, minus infinity to infinity, 0 to infinity, and this is also okay when we think about, or this is also correct when we think about this AR as radius of the circle and R input variable as area of the circle and R as the radius of the circle. तो उस वक्त ये होंगे, ठीक है। So now in continuation of this discussion, so mathematical models that describes real world phenomena must be accurate, as accurate as possible. So you bring things from your real world into mathematics in form of functions and variables, or relation between independent and dependent variable. So there should be accuracy should be dealt or handled carefully, ठीक है। अदरवाइज मॉडल में ही एरर होगा तो उसको आगे सॉल्व करना, या और ये बाकी तीन थोड़ी सी टिप्स हैं मॉडल्स के ऊपर पर, तो जस्ट गो थ्रू दिस वन। So now any question? So we are done mostly with the domain and range, which I left in the first lecture as a homework, but any question from this part? How many of you have submitted? जी सर आप एक फंक्शन एक्सप्लेन किया था जिसमें x - 2/x - 7 था सर, उसका डोमेन आप
IR -7 शो किया था, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक्सप्लेन कर देंगे? दिस फंक्शन x minus 2 divided by x plus 7, इसका जो डोमेन है, दिस इज नॉट IR, दिस इज R, ठीक है। तो ये R को वो डबल जैसे करके लिखते हैं ना, आपने मॉड्यूलस लगाया? मॉड्यूलस भी नहीं है, मतलब R को ऐसे लिखते हैं, ये जहाँ जो है ना जैसे बुक्स में लिखते हैं, इट्स समझ गए नहीं? जी सर, बिल्कुल समझ। The set of real numbers को इस तरह करते हैं ना, set of real numbers, ठीक है। तो अभी क्लियर है? जी सर, इसका डोमेन आपने कैसे निकाला, मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। ओके, सो दिस इज अ वेरी इनोसेंट फंक्शन, बहुत सिंपल फंक्शन है। इसमें मतलब आपको अब मैथमेटिकल सेंस आपका कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ -7 पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर में 0 आता है, और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक आउटपुट दे। प्रॉब्लमेटिक आउटपुट मींस के इन्फिनिटी आउटपुट या कॉम्प्लेक्स सर 2 नंबर। - 2 भी अगर हम ऊपर डाल दें तो भी 0 हो जाएगा। तो ही 0 होगा, तो भी 0 नहीं होगा। जब x इज इक्वल टू -7 पुट करते हैं तो वो डिनोमिनेटर में 0 होता है, एंड डिनोमिनेटर का 0 प्रॉब्लमेटिक है, न्यूमिनेटर का 0 प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर का 0 इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है कि बिकॉज इट लीड्स टू इंफिनिटी, अनडिफाइंड नंबर। अगर x इज इक्वल टू -7 पुट किया है तो ये हो जाएगा -9/0, -9 डिवाइडेड बाय 0। सर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो न्यूमिनेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और इसका रिजल्ट आता है 0। तो 0 तो रियल नंबर है, आउटपुट इज ओके, राइट, रेंज में है वो। एंड yeah, we can, I mean, then accept x as a part of domain. अगर undefined आता तो फिर नहीं करते। Did I answer your question? Yes sir. Thank you बच्चे। और कोई क्वेश्चन? Yes. सर ये R क्या है? -7 है, तो -7 तो मुझे क्लियर हो गया, बस ये R क्या है? Set of real numbers. 0 से पॉजिटिव इंटीजर्स, -infinity to infinity. Set of real numbers, including negative real numbers, positive real numbers, and 0. ठीक है। Yes, Samant, you have question? No sir, वो गलती से लग गया, सॉरी। कोई और क्वेश्चन किसी को? कम ऑन। सर आपने अटेंडेंस ली थी पिछली क्लास में? जी हाँ सर, स्मार्ट पे तो नहीं शो हो रही अटेंडेंस। सर मेरी भी नहीं हो रही। आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं? जी सर। यस सर। मैंने अभी स्मार्ट्स पे इनपुट नहीं की है उसकी अटेंडेंस। मैं इसी इंतजार में हूँ कि आप कोर्स कब छोड़ के जा रहे हैं। नहीं सर, इंतजार में नहीं रहा। कोई मसला नहीं, मतलब मेरे पास। जी बच्चे। सर मेरी मार्क आपने नहीं किया सर। अटेंडेंस में कर दूंगा स्मार्ट में, आप उसकी वजह से परेशान ना हो, ठीक है। मेरे पास है रिकॉर्ड। सर आपने आज की क्लास के लिए अटेंडेंस ली है ना अभी तक?
इस क्लास की नहीं ली अभी तक बच्चा। सही है सर। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन, इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, वीडियो भी आ जाता है एक तो, और दूसरा एक स्टेटिस्टिक्स आती है कि किस टाइम कौन लॉग इन हुआ है और साइन आउट हो गए, मतलब मीटिंग छोड़ दी और इन हुआ है। सर यूनिवर्सिटी फैब से खोल ली है क्या? फर्स्ट फेब से वो क्लासेस फिजिकल हो रही हैं जिनकी एनरोलमेंट 20 से कम है। ठीक है सर आप इको एंड मैथ के एचओडी हैं? मैं मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स का, और मैथ एंड इकोनॉमिक्स का जो जॉइंट प्रोग्राम है वो अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे ही डील करना पड़ता है हमारे डिपार्टमेंट में, मैथ एंड स्टैट्स। ठीक है सर वो हमारे लैब का आपने लास्ट क्लास में बोला था, लैब का इशू प्रोग्रामिंग का। लैब सेक्शन क्रिएट करवाया है आपको, उसमें अभी भी एनरोलमेंट नहीं हुई? सर एनरोलमेंट हो गई, लेकिन हमें उनके साथ कंप्यूटर साइंसेज वालों के साथ भी डाल दिया। तो हमारे हमें लेना पड़ेगा लैब सेशन और प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स। जी हाँ, असगर पढ़ा रहे हैं ना? जी असगर पढ़ा रहे हैं और वो मैम पढ़ा रही हैं। कौन सी मैम है लैब के लिए? सर वो नाम अभी याद नहीं हो रहा। सादिया खान? मिस उरूज नहीं सर, मिस उरूज पढ़ा रही है। उरूज बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छी, शी इज वेरी नाइस। ठीक है, आप बहुत इजी फील करेंगे उनके साथ। ठीक है, सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस डोमेन एंड फंक्शन। सो असाइनमेंट आपकी एलएमएस पे इट वाज अबाउट डोमेन एंड रेंज। ठीक है ना, वो अभी आप इस पोजीशन में होंगे कि उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। बहुत स्टूडेंट्स ने तो पहले ही रिस्पॉन्ड कर दी थी। सर अभी अपलोड किया एलएमएस पे? नहीं, लास्ट वीक की है वहाँ पर असाइनमेंट नहीं है लास्ट। वो सेट्स वाला नहीं था? और वो वेन डायग्राम की थी। ओके सॉरी, मैंने हाँ वेन डायग्राम वाला था सर। सॉरी इसकी नहीं दी, और इसकी मैं अभी करूंगा। पर मिक्सअप हो रही है चीजें। आई थॉट कि मैंने ऑलरेडी कर दी है, बट नो। और उस वेन डायग्राम की भी अभी भी क्विज दिया था, वो भी वेन डायग्राम, एक क्विज था, एक असाइनमेंट था। जी सर, जी सर। जी सर, क्विज में तो फंक्शंस था ना? क्विज में फंक्शंस थे बिल्कुल, और असाइनमेंट में था सर क्विज में भी थे वेन डायग्राम। Let me check for you. क्विज में इस तरह के क्वेश्चंस थे कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है, वेन डायग्राम एंड ऑल दीज थिंग। असाइनमेंट में भी वेन डायग्राम से, और जो मैं बात कर रहा हूँ कि डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले क्वेश्चंस नहीं थे, वो अभी इस वीक की असाइनमेंट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किए हैं डोमेन और रेंज को with more, let's say, details. And next part of this lecture is calculus. So we're not wasting more time. And we have handouts, nice handouts, which we shall follow for this limits chapter. And I will show you first, and then I will upload on the LMS. So let me share that file. Save, then present window, and this one. Can you see the screen? Break कर लें? Yes sir. Yes sir, please. Calculus 1 limits, Paul Dawkins के lecture notes हैं, and we are going to follow these lecture notes. I used the same lecture notes in the last semester, and it was hit. Sorry. LMS पे आप अपलोड करेंगे ये वाली लेक्चर्स? Of course, this is your property. By the way, ये वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने वेबसाइट भी बता दी थी पॉल डॉकिंस की। मैं अपलोड भी कर देता हूँ, और वेबसाइट की लिंक भी एलएमएस पे रख देता हूँ। ठीक है, आई बिलीव इन, आई मीन नॉलेज शेयरिंग, इट मेक्स। ठीक है, और रिसोर्सेज इसमें जो सिर्फ
सर इसमें से सिर्फ लिमिट्स करेंगे या कोई और भी चैप्टर होगा? इनके इस ये चैप्टर दिस इज ओनली अबाउट दिस चैप्टर इज अबाउट लिमिट्स, ठीक है। बट इसके जो लेक्चर नोट्स हैं पार्ल डॉकिंस के, जो वेबसाइट पर आप देखेंगे, वहां पर उसमें डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। सो वी विल कंटिन्यू रिफरिंग these lecture notes from this point and onward, ठीक है? Okay. And yeah. So let's take break 10 minutes, ठीक है? 20 minutes के करना। Wait me check. और 2:30 तक अगर हम करें तो फिर we will have 1 hour and 15 minutes. या चलें ठीक है 2:30 तक, सही है? Okay sir. 2:30 I will start at 2:30, ठीक है? Okay.